Hello everyone, you're welcome to this video, and in this video I'm going to talk about something which is going to be very helpful for all of you who wants to learn something new, who wants to learn the English language and any other language, whatever you like. This will help actually in the manner how you are going to be see the things. So actually what I'm here to talk about, yeah, I write it on before. So, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका। और मैं जो बात करूँगा वो पता ही है कि मेरा लैंग्वेज इज गोइंग टू बी लाइक द हिंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश कॉल द हिंग्लिश. So, what actually I am here to talk? I'm here to say you something which which is about expression. Yeah. So this is the title of the videos. Be expressive. It means simply become a expressive man. Because हम लड़कों के साथ या एक मैन के साथ ये चीज़ टैग कर दिया जाता है कि मैन एक्सप्रेसिव नहीं होते. वेयर द गर्ल्स या फिर औरतों की बात आती है वो एक्सप्रेसिव होती हैं, एक्सप्रेस कर पाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. पर एक्सप्रेस करने का मतलब क्या होता है? कुछ भी उड़ेल देना नहीं होता है कि कुछ भी उड़ेल दो. I am here to talk about actually what I want to tell you, that become expressive and what I mean actually. And sorry for the disturbance because there is a lot of noise in background, so please tolerate it and you have to do it because I have don't any options and I have to, otherwise I have to record it at midnight. So I'm recording it and just to watch it. Become expressive. So here, dear people, it is a humble request, become expressive. You tell me that what is the use of your knowledge when you are not able to tell the people you know something about. Yeah, you are literate, you are educated, you are graduate, each and everything become worthless until or unless you become expressive. जब तक आप एक्सप्रेसिव नहीं बनते कोई वैल्यू नहीं है इन सब चीज़ों का भाई. You have a lot opinion and the ideas. I really appreciate you, but you know that I have seen the people, they are really amazing and I really appreciate them, but their intellectuality to express, to tell the people is zero. So it is a humble request. Let us find a way to express and let the society, let the people get benefited by our skills. So it is a really my suggestions, become expressive. So there is a term that how you become the expressive. Now it is the questions that might be possible pop up in your mind, so you have to learn about it, that how you actually express anything. एक्सप्रेशन जैसा कि मैंने बोला इसका मतलब कुछ नहीं होता उड़ेल देना, मतलब कि जो मन में आ रहा है उड़ेल दे. But when the terms, when the time, when you're actually you are getting an opportunity to speak whatever and any idea, opinion, your thoughts, try to share with your friends, try to share at a chalk, try to share in the public places whenever you get a chance. क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो होता है ना चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो, बट जब हमें मौका मिलता है, बट व्हेन हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, हम वहाँ से पीछे होते हैं. हमारा माइंड भी वैसा ही प्रोसेस बना हुआ है. एक्चुअली यू हैव टू लर्न, यू हैव टू नो योर माइंड, हाउ योर माइंड इज एक्चुअली वर्किंग. ये ऐसे ही काम करता है कि देखो जब क्या होता है किसी भी सिचुएशन के अंदर जब आपको मौका मिल रहा होता तब ये पीछे लेता, बैक फुट, वहाँ पे नहीं बोलने देता. एंड आफ्टर दैट उसके बाद बताता है नहीं बोला नहीं अभी तो. आपका माइंड एक जगह पे स्टेप नहीं लेने दिया और दूसरी वक्त क्या करता है ये आपको जलीली भी करता. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू ऑब्जर्व इट, यू हैव टू जस्ट वॉच इट एंड द एक्शंस ऑफ इट. And once you are getting that how your mind is working, you are going to get the purchases and you become whatever you want to. एंड एक्सप्रेसिव होना एक क्या है, कला है. ऐसे मैं बात करता हूँ कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, दिस इज द पर्सनैलिटी टाइप जनरली वी नो अबाउट इट अ पर्सन हैज़. सो मैं पर्सनली क्या हूँ, एक इंट्रोवर्ट हूँ, बट दिस डेज आजकल मैं कुछ पिछले महीनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्सट्रोवर्ट नहीं, मेरी जो इंस्टिंक्ट है, मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति के अंतर्गत दोनों ही पर्सनैलिटी होती है.
जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पर हम जो बोलते हैं तो वहाँ पे एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं, जहाँ हम चुप रहना पसंद करते हैं वहाँ पे इंट्रोवर्ट कहलाते हैं। बट इन कॉम्बिनेशंस इसकी होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशंस। जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं बोलूँगा। दिस इज़ माई कमिटमेंट टू माई सेल्फ. If I need here to speak, I will speak. I'm not going to be keep my mouth shut. Yeah, close. I will say whatever my thought is, whatever my opinion is. क्योंकि अगर आप नहीं बोलिएगा तो एक इंस्टिंक्ट क्या हो जाता है अंदर कि हम इंट्रोवर्ट का हर एक जगह चुप रहने वाली। दिस इज़ द हम कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, या एक ताकत भी हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि देयर इज़ ईच एंड एवरीथिंग वट एवर, हर एक चीज़ का क्या होता है, एक प्रॉस एंड कॉन्स होता है, किसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता ही होता है। तो पर जनरली देखा गया है कि अगर हम बात करते हैं तो एक्सट्रोवर्ट जो पर्सनालिटी होते हैं वो कहीं पे इज लेके चले जाते हैं इंट्रोवर्ट की। रियली आई अप्रिशिएट इंट्रोवर्ट, क्योंकि वो सब अमेजिंग होते हैं, वो काम बहुत ही तगड़ी करते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही ज़्यादा होता है, वो गुड लिसनर होते हैं इंट्रोवर्ट्स। बट नॉट टू बी एबल टू एक्सप्रेसिव गेट एक्सट्रोवर्ट लेकर के चला जाता है इंट्रोवर्ट का जो भी होता है। सो मैं तो यही कहूँगा कि एक्सप्रेसिव बनूँ। अब जैसे एक्सप्रेसिव होने के लिए कुछ भी करो भाई, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, एंड you all have heard about it that practice makes the man perfect. So whatever you want to, you have to practice it, and when you do it more time, it become easier, much more. Yeah, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाने वाला अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं तो, और नहीं करते तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो एक्सप्रेसिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमें इसके लिए कुछ करना नहीं होता, जस्ट लिसन, ऑब्जर्व द सिचुएशंस एंड कम्युनिकेट विद द पीपल। अननेसेसरली अगर नहीं बात करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम्हें बोलने से डर लगता है, भाई कहीं पे आप जाते हैं और सोचते हो यहाँ पे मुझे ये चीज़ बोलना चाहिए बट नहीं बोल पाते, तो यू नीड टू बी एक्सप्रेसिव, यू नीड टू बी यू नो दैट, इकट्ठा करना पड़ेगा क्रेज। यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव, यू हैव टू एक्चुअली व्हाट आई सर्च फॉर, वर्ड्स मिल नहीं रहे, मतलब क्रेज जुटाना पड़ेगा। यू हैव टू एक्चुअली, समझ रहे, हिम्मत, एंड यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं अपना मौन को, साइलेंट है, मज़ा आ रहा, बढ़िया चीज़, लेकिन आप साइलेंट इसको लेकर के हैं कि मैं यहाँ पे बोल नहीं पा रहा क्योंकि अंदर से वो आ ही नहीं रहा, तो ट्राई करो बोलने के लिए। अगर नहीं करते, you are going to be just unfair with yourself, and I'm going to be just here to tell you that how you actually become expressive. There is no alternative method. I'm not going to give you here the method by which you following you are going to be expressive. There is just only one, that be a good speaker. You have to do it. Yeah, तुम्हें बोलना पड़ेगा until or unless you are not going to be become एक्सप्रेसिव पर्सनस। एंड देखते हो बहुत बड़ा जो, मतलब जैसे कि कॉमेडियन हम बात कर लेते हैं, जैसे पोइट्री से होते हैं, बहुत सारे जो स्टेज एंड पब्लिक प्रोग्राम्स करते हैं, उन सब के बस एक मतलब जो होता है ना, मोस्ट थिंग्स जो उनकी एक स्किल्स बोलो, एक बहुत ही बड़ा कला बोलो, वो यही चीज़ होता है एक्सप्रेस करने का। वो क्या कर पाते हैं, कुछ भी चीज़ें होते हैं ना, स्टोरी जोड़ करके कहीं से कहीं कोई भी कॉम्बिनेशंस बना करके वो एक्सप्रेस कर देते हैं लोगों के सामने, और बोलते हैं यार ये बंदा कितना मतलब जो इंटेलिजेंट, दैट इज़ गोइंग टू बी अदर थिंग्स, बट ये बंदा होता ना, मन चमा देता भाई, मज़ा आता है इससे बातें करके। दैट यू हैव टू बी बिकम। एंड अब कहीं पे वो वाली बने हुए हैं, सिग्मा में देख लिया वीडियो स्क्रॉल करते करते यूट्यूब इंस्टा पे, और ऐसे आंसू खड़ा, गुड लुक, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी। भाई ये सब बकवास चीज़ें हैं, बकचोदियाँ हैं, सीधी सी बात बोलूँ तो ये सब पे उतना नहीं होती है। सिग्मा में रियलिटी जो दिखाया जाता है, रियल लाइफ अलग होती है और रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। सिग्मा इट डजंट मीन दैट लाइक। भाई साहब आप एक्सप्रेसिव तो बनो। ये बताओ कि कब मतलब आप किसी लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे ही आपसे बहुत सारे लोग कम्युनिकेट करते हैं, बट बहुत ही कम लोग होंगे जो आपको याद रह जाता होगा कि भाई क्या बंदा है यार, क्या बोलता है, ये मंच पे बोलता है तो यार ऑडियंस सुनते हैं इसको। कैसे एक्सप्रेशन का जो होता है ना, वो उसके अंतर्गत एक कला होती है। तो एक्सप्रेसिव बनने की कोशिश करिए, बातें कीजिए। जब आप बातें करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये बातें करने से आपको गलतियाँ पता चलती है, कहाँ पे मुझे क्या नहीं बोलना चाहिए था, एंड वेयर आई नीड टू बी स्पीक, मतलब कहाँ पे बोलना चाहिए था।
तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे ये नहीं बोलना चाहिए तो उस व्यक्ति को बोल देना, भाई सॉरी यहाँ पे मैंने आपको ऐसा बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था मुझे, क्योंकि अब जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और जैसे ही आप अपना एक्सप्रेस करना चालू किए खुद को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें फैक्ट पता चलते हैं, आप कहाँ पे आप फंबल कर जाते हैं और कहाँ पे आपको क्या होता है मिस्टेक करते हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, आपको ये करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, एक्सप्रेसिव बनिए, ठीक है, सीखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कला है कि ये समझ लीजिए स्किल्स ही है, ये कम्युनिकेशन के अंतर्गत बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी आपको। और मैं सोच रहा हूँ ये सारा चीज़ हिंदी के अंतर्गत हो गया, मैं सोच के आया था कि दोनों को मिक्स करके बनाएंगे, और ये बहुत बड़ा वीडियोस एक हिंदी के अंतर्गत ही हो गया वैसा के अंतर्गत। पर कोई नहीं, हम सब हिंदी मीडियम से हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी मीडियम्स के से इंग्लिश जो भी मतलब बिलोंग करते हैं उसको इंग्लिश कैसे सीखना है, सारा चीज़ें इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। और सो सीखिए और कुछ बेहतर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश, मैं ऐसा चाहता तो पूरी वीडियोज़ ही क्या हो सकती है हिंदी के न हो करके इंग्लिश में होती है मेरी वीडियो लैंग्वेज। आई एम एबल टू एक्सप्रेस एक्चुअली, यू नो दैट आई नो द मैथली हिंदी एंड इंग्लिश। Sure, it is not a language barrier. Whatever you are speaking and in which language you are communicating, it is not going to be matter. But what you are communicating, it is actually matters. So आपको क्या मिला, क्या सीखे, क्या समझे, बस लैंग्वेज का क्या खेल है, बस आपको समझ में आना चाहिए। एक्चुअली यू नो दैट कम्युनिकेशन सीखना किसी भी लैंग्वेज के अंतर्गत आसान होती है, ये इंग्लिश के अंतर्गत ही नहीं होना चाहिए, इसी के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, हर एक चीज़। योर प्रॉब्लम इज नॉट एक्चुअली लैंग्वेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन, योर प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, सेम लाइक दैट। सो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, थैंक्स लॉट।